Hello students, welcome you all. Today we are going to study the very first chapter of class 11th, that is the physical world. This chapter is not important for any entrance exam or school exam, but it is very important for your understanding and knowledge. So everyone must know the basic meaning of physics, or we can say that what is physics, what we have to study in physics, what are the focus areas in the physics. Therefore, the physical world is the basic introduction of physics, which gives you an idea of many topics which you will study in the future 2 years. So, this chapter is going to be very interesting. But before knowing what is physics, let's first know what is science. Science is a Latin word scientia, which means to know. Science का संस्कृत वर्ड विज्ञान एंड अरेबिक वर्ड इल्म दोनों का मतलब है organized knowledge. Science is a systematic attempt to understand natural phenomena in detail and depth and use that knowledge to predict, modify and control phenomena. It is also about exploring, experimenting, predicting from what we see around us. Basically, science is all about knowing about the facts. It is a systematized and organized knowledge. साइंस को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया. फर्स्ट कैटेगरी इज बायोलॉजिकल साइंस. बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं. जैसे कि आप हायर क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस एक्सेट्रा. Second category of science is physical science. Physical science. Physical science को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फर्दर. फर्स्ट इज केमिस्ट्री एंड सेकेंड इज फिजिक्स. केमिस्ट्री के अंदर हम सब्सटेंस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं. वाइल इन फिजिक्स के अंदर हम नेचुरल वर्ल्ड के बारे में स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल रेडिएशन, एनर्जी, मोशन, स्पेस, टाइम एक्सेट्रा. जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि साइंटिफिक मेथड क्या है. साइंटिस्ट जब भी कोई इन्वेंशन या कोई थ्योरी देते हैं तो वो नंबर ऑफ़ स्टेप्स को फॉलो करते हैं और फाइनली उस थ्योरी को या इन्वेंशन को कंक्लूड करते हैं. सो द सीरीज ऑफ स्टेप्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द साइंटिफिक मेथड. स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज्ड बाय साइंटिस्ट इन स्टडिंग नेचुरल फिनोमेना and establishing laws which govern these phenomena is called scientific method. There are several steps. In scientific method, there are mainly 6 steps which are interconnected with each other. First is systematic observations, second controlled experiments, third qualitative and quantitative reasoning, fourth mathematical modeling, fifth prediction, and the last one is verification and falsification of theories. तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं. फर्स्ट स्टेप इज सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस. नेचर के सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, जैसा कि न्यूटन ने किया. न्यूटन ने कंप्लीट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिख डाला. क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया. बट व्हाट डिड ही ऑब्जर्व? ही ऑब्जर्व दैट एन एप्पल फॉल्स डाउन फ्रॉम अ ट्री. इस इंसिडेंट को देखते हुए उनके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि वाई डज एन एप्पल फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ ऑलवेज.
वाई डिडंट इट गो इन द अदर डायरेक्शन? क्यों हमेशा एप्पल अर्थ की तरफ ही आता है, क्यों नहीं वो दूसरे डायरेक्शन में जाता है? आफ्टर दैट द सेकेंड step is controlled experiments. So after that, Newton's performed several experiments in lab to study this phenomena. For example, he throws an object in the upward direction and thought that does and every object thrown in the upward direction comes in the downward direction? So yes, it did. Next step is qualitative and quantitative reasoning. In qualitative reasoning, उन्होंने एक बताया कि अर्थ में कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. He performed several experiments and came to know that two body having masses attract with each other. दो बॉडी है जिनके मास m1 m2 है और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है r. तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में ये न्यूटन ने ये बताया कि फोर्स कौन कौन सी क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है और फोर्स की वैल्यू क्या होगी, और ऑब्जर्व किया कि फोर्स जो है बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. नेक्स्ट स्टेप इज मैथमेटिकल मॉडलिंग. बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव रीजनिंग, scientists defined the force of gravitation and gave the formula F is equals to G m1 m2 by r square. This formula is known as universal law of gravitation, which you will study in detail in the chapter gravitation. इस फॉर्मूले में m1 और m2 मासेस हैं दो बॉडीज़ के, और r क्या है? r जो है दो बॉडीज़ के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है. अब इस फॉर्मूले के बेस पे प्रिडिक्शन किया गया कि क्या मास और डिस्टेंस चेंज करने पे फोर्स की वैल्यू चेंज हो रहे हैं. फोर्स इज चेंजिंग और नॉट. इफ इट इज चेंजिंग, अगर फोर्स चेंज हो रहा है तो प्रिडिक्शन करेक्ट है और मॉडल को फिर वेरीफाई कर लिया जाता है. दैट इज मॉडल इज वेरीफाइड एंड गेट्स इंक्लूडेड इन द साइंस एंड वी स्टडीड इट. बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स आर करेक्ट. ऑल द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड मैचेस विद द नेचर और द फॉर्मूला मेड ऑन इट गेट्स वेरीफाइड. कुछ ऐसे भी मॉडल्स हैं जो कि रॉन्ग प्रूव हुए हैं, कुछ ऐसे प्रेडिक्शन जो कि रॉन्ग प्रूव्ड हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन हैज़ गिवन द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड वेव एंड सेड दैट प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इज एन isothermal process and the formula for it is under root p by rho. Here p is the atmospheric pressure and rho is the air density. जब इनकी वैल्यूज़ पुट की गई तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो आई वो स्पीड ऑफ साउंड वेव से लेस थी, इसलिए इस फॉर्मूला को जस्टिफाई नहीं किया गया और इस मॉडल को फॉल्स कंसिडर किया गया. उसके बाद लैप्लेस आए और लैप्लेस ने इसे करेक्ट किया और अज्यूम किया कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इज़ एन एडियाबैटिक प्रोसेस, नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड he gave the formula that is under root gamma p by rho. इन तीनों क्वांटिटीज़ की वैल्यू को पुट करने पे जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ साउंड वेव से मैच कर गई और इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर दिया गया और इसे साइंस में इंक्लूड कर दिया गया. अगर कोई थ्योरी रॉन्ग प्रूव होती है तो सारे के सारे 6 स्टेप्स दोबारा से रिपीट किए जाते हैं. So now, what is physics? The word physics comes from a Greek word physis, which means nature.
Its Sanskrit equivalent is Bhautiki, that is used to refer to the study of the physical world. In simple terms, we can say that physics is nothing but the general study of the basic laws of nature and the natural phenomena which we see around us. For example, twinkling of stars, falling of an apple from a tree, motion of planet around the sun, regular repetitions of the day and night, rainbow, etc. There are two principal thrusts in physics. One is unification and the other is reductionism. So let's discuss it. What is unification? Unification means to unify. Several phenomena can be explained with the help of single law और मिनिमम लॉ. फिजिक्स के डिफरेंट फिनोमिनन को हम सिंगल लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, falling of an apple from a tree, motion of planet around the sun, motion of moon around the earth, these all phenomena can be explained on the basis of universal law of gravitation. Next example, all electric and magnetic phenomenon can be explained by the Maxwell's equations. Maxwell's equation. मैक्सवेल की इक्वेशन की हेल्प से सारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेनन को एक्सप्लेन किए जा सकते हैं. मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दिए हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस. यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस. नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं. बाय द वे, फोर्सेस आर ऑफ मेनी टाइप्स बट दे ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फोर्सेस. फॉर एग्जाम्पल, frictional force, spring force, viscosity, elasticity, these all are derived from the fundamental forces. So, the fundamental forces is unified. Okay. Now come to the second point, that is reductionism. Reductionism means to reduce. To study the complex process into its constituent or smaller parts, then it is called reductionism. जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को जब हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम उसे स्टडी करते हैं, उसको हम रिडक्शनिज्म कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडाइनमिक्स की हेल्प से बल्क सिस्टम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी एक्सेट्रा, इन सब को हम समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज हाउ कोल गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. कोल का कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी में कैसे होता है, तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं. सबसे पहले तो हम कोल को बर्न करते हैं. बर्निंग से क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन विथ ईच अदर एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस हीट इज रिलीज्ड विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब इस हीट को ये हीट वाटर को दिया जाता है और वाटर उससे क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद स्टीम से कनेक्टेड होता है टरबाइन और स्टीम से टरबाइन रोटेट करने लग जाता है. टरबाइन से लगा हुआ होता है शाफ्ट और शाफ्ट से कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर दैट इज डायनामो. और हमें मालूम है
इलेक्ट्रिक जनरेटर। और हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई वायर मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से कोल का कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी में हुआ है। तो रिडक्शनिज्म इज बेसिकली द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इनटू इट्स स्मॉलर पार्ट्स। In the next video, we will study the scope of the physics, excitement of physics, and many more. That's all. Thank you.